So, team, we are talking for writing task B. Okay. Now, in writing task B, what is basically TEF? TEF में है क्या basically आपका writing task B है क्या TEF का? So basically, you have to write a letter to the, to the journal, to the chief of the journal, right? Newspaper. So now, for example, होता क्या है इसमें कि for example, you read an article for pollution, embouteillage, déchets, malbouffe, télétravail, les homophobes, any topic, les homophobes, clear? अब इनके मीनिंग क्या है basically? Pollution, pollution, embouteillage, we have a traffic jam. Circulation, circulation is also your jam, traffic jam. Embouteillage, repete après moi s'il vous plaît. Embouteillage. Embouteillage. मैं सब बोलूं ना, embouteillage, circulation, circulation, c'est clair. Circulation. Ok, embouteillage, circulation. Embouteillage. Circulation is we call it Circulation. Circulation. Déchets, we have waste, garbage. Déchets, Okay. waste, garbage. Malbouffe, bad eating habits. Burger, pizza. Okay. So malbouffe क्या है? Bad eating. Bad. Sorry. Malbouffe. We have nourriture mal, bad nutrition. Okay. Nourriture. Repeat after me. Nourriture. टर्म्स दे रहा हूँ, या पता होनी चाहिए आपको. Nourriture mal. Nourriture is a nourishment. Mal is bad. Bad nourishment. C'est clair? D'accord? Nourriture. Télétravail. Télétravail is work from home. Télétravail. Work from home. Work from home. Les form of ये क्या होते हैं? जो घर का काम संभालते हैं. जैसे वो वर्किंग भी हैं और बच्चों को भी देख रहे हैं, घर का खाना भी बनाते हैं. That we call as les form of ये जो अपनी फार्म की हेल्प करते हैं. फार्म क्या होता है? अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं. से क्लियर? ले फार्म ऑफ ये, अब वो जो फीमेल जो घर का काम भी कर रही हैं और ऑफिस भी जा रही हैं, दैट इज ले फार्म ऑफ ये. ले जोम ऑफ ये, इट मींस, मेरे साथ बोलो, ले फॉर्म ऑफ ये सेतादीर क्वा. अब आप मेरे साथ बोलोगे आज लैंग्वेज को. सेतादीर क्वा बोलो मेरे साथ, आप चाहे कुछ भी हो. सेतादीर क्वा. This is a to, because this a we have a preposition. Yes, true. This is to say what? Qua, what? Deer हमने किया is my verb to say. हाँ जी, to tell. सेतादीर क्वा बोलो. Setadir qua. Setadir qua. Setadir qua. बोलो टीम. Setadir qua. बोलो les homophobes. Les homophobes. Les homophobes. C'est-à-dire quoi? I will say. Les homophobes, c'est-à-dire quoi? Les homophobes. I will say. Okay. मेरे साथ बोलोगे. Je vous explique ici. मेरे साथ टीम बोलो मेरे साथ लैंग्वेज को. Je vous explique ici. Je vous explique. So basically, explique is my verb to explain. explain. मेरे साथ बोलोगे, ये बहुत अब इंटेंसिव प्रोग्राम में हम एंटर कर रहे हैं. Explique is my verb to explain. अब आपने ईयर एंडिंग वर्ब का फॉर्मूला किया है, मैंने पहले वर्ब सेव करवाई है आपको, सो दैट यू नो कि ईयर एंडिंग वर्ब का फॉर्मूला क्या है. Yes. अब मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट करूंगा, नॉट इन इंग्लिश. हिंदी में क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पर इंग्लिश आई एक्सप्लेन टू यू. हिंदी में क्या है, आप पहले आ रहा है ना, मैं आपको, बट इंग्लिश में क्या है, आई एक्सप्लेन टू यू, आप बाद में जा रहे हैं. टेल मी yes and no. हाँ जी.
क्लियर? सर मतलब फ्रेंच में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा होता है जिसके जिसके जिससे बात करें वो पहले आता है वर्ब से। बच्चे हम हिंदी में ऐसे थोड़ा लर्न करेंगे ना, हम बस हिंदी को यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज ओके कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा, सिर्फ आप नॉर्मल देखोगे कि मेरा हिंदी फॉर्मेट क्या है। ओके आई, जबू एक्सप्लेन, मैं आपको, को मैं एक्सप्लेन आपको करते जबू एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लीक आएगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, एक्सप्लीक। क्लियर? क्लिक, क्लियर? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हेयर, यहाँ, इसी, इसी इज हेयर, इसी। आई विल से je vous explique इसी। क्लियर? हाँ जी अब मैं बोलूंगा मैं आपको यहाँ हाईलाइट करता हूँ सिचुएशन को, तो आप बोलोगे जब वो répétez après moi, souligner is my verb to highlight the situation. हाँ Souligner. जी Exprimer, repeat after me, exprimer is to express, montrer, montrer is to show, souligner is to highlight, exprimer is to express, montrer is to show. Is it clear to you? ajouter, टीम ये वर्ब यूज करनी है। बोलो मेरे साथ आप, souligner, सुलीने exprimer, एक्सप्रीमे एक्सप्लेन, montrer, मॉन्ट्रे Montre, ajouter. आजुते में, Claire. If I will say मैं आपको एक्सप्रेस करता हूं, तो répétez après moi, je vous exprime. C'est clair? मैं हाँ आपको जी करता हूं, je vous montre. C'est clair team, tell me. मैं आपके लिए लेट्स ऐड ऑन, मैं ऐड ऑन करता हूं। अब j'ajoute, कॉन्जुगेशन पता लग रही है ना, j'ajoute, क्योंकि एक ई, ajouter, j'ajoute, क्यों यहाँ पे दो वॉवल हैं, j'ajoute। टीम, इज इट क्लियर टू यू? जाजूत, ये समझ आ रहा है कि हमने पहले ईयर आयरनिंग वर्ब्स क्यों करी है, सो दैट एटलीस्ट यू नो द कॉन्जुगेशन। से क्लियर? सुलीने क्या होता है? हाईलाइट करना। टीम, हाँ जी अच्छा मैम इसको रिपीट करो स्टार्टिंग से, बिल्कुल पॉल्यूशन से। एम्ब्यू, एम्ब्यूटी, एम्बूतिला Embutiage, एम्बूतियास, देशते हाँ नो, Deshe, ओनली आकृति मैम, सॉरी अर्शिता कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आकृति मैम। Embutiage, हाँ Deshe, Malbouffe, I don't know how to pronounce this. What is टेलीट्रवाय, it? यहाँ पे ना Teletravail, ई के ऊपर ए साउंड लगा लो, Teletravail, ए साउंड है, and that eb also we have a sound. Clear? Teletravail. Okay. Teletravail, a form of foyer, circulation, nourriture mal, Les les hommes au hommes foyer, c'est très bien. foyer, c'est-à-dire quoi? C'est très bien. C'est-à-dire quoi? What else? Les femmes au foyer. Les femmes au foyer, souligner, exprimer, Very good. montrer, ajouter, je veux exprimer, je veux montrer, Je vous. sorry, je vous exprimer, je vous montrer, je vous No. Extreme. अगर ए लगाऊंगा तो साउंड मेरी चेंज हो जाएगी ना, यहाँ पे ई के ऊपर ये वाला साउंड एक्सट्रीम है ये। okay, je vous exprime, je vous montrer, montre, je vous explique ici, ici, j'ajoute, j'ajoute, expliquer, expliquer, je vous explique ici। क्लियर? je vous explique ici, okay. अवन एक बार इसको एक्सप्लेन करो फटाफट, स्पीडली।
Embouteillage, déchetté, malbouffe, télétravail, circulation, légumes au feu, वो कैसा न्यूट्रिशन वाला कैसे बोलना है सर उसको? Nourriture mal. हाँ, nourriture mal, Mhm. les femmes au foyer, Uh-huh. je vous explique ici. Uh-huh. Souligner, exprimer, montrer, ajouter, je vous exprime, je vous montre, je ajoute. क्लियर? अब देखो, अब आपको बता दूं कि टास्क बी में है क्या टीम। ये कुछ वोकैब हम यूज करते हैं इसमें, राइट? क्या होता है कि टीम, मान लो मैं एक न्यूज़पेपर रीडर हूं, आप एक न्यूज़पेपर रीडर हो, रीडर, ओके? और आपने एक आर्टिकल पढ़ा तो आप ना उसमें कुछ अपने पॉइंट्स ऐड ऑन करना चाहते हो, कि जैसे आपने टॉपिक पढ़ा ट्रैफिक जैम का, तो आप बोलो कि मैं कुछ या फिर कुछ बैड हिटिंग हैबिट के बारे में पढ़ा, ठीक है? आप उसमें ये कहना चाहते हो अपने न्यूज़पेपर वालों को कि सर आपको स्टार्ट कैसे करना है। आप बोलोगे सर मैं आपका एक लॉयल रीडर आपका न्यूज़पेपर का हूँ, जो कि जब से आपका न्यूज़पेपर बना है तब से मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। कुछ चीज़ों से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि पहले उसको आप रिस्पेक्ट दोगे। टीम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes. फिर आप उसको बोलोगे ठीक है, मैंने लास्ट मंथ या लास्ट वीक मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैं बहुत ही सहमत हूँ आपके इस आर्टिकल से, बट मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स हमें ऐड ऑन करने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके, ब्ला 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 ब्ला। बट पहली ओपनिंग क्या है? सबसे पहले आपको ओपनिंग सिखा रहा हूँ कि आई एम अ लॉयल रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। यही टेल मी हाँ जी। कि मैं आपका एक रीडर हूं, जो कि मैं आपका आर्टिकल डेली पढ़ता हूं, और मैं बहुत, इसके बहुत सारे वेज हैं, इसके मल्टीपल वेज हैं, आपके लेटर राइटिंग की ओपनिंग देने के, एंड आई विल गिव यू द मल्टीपल वेज। ऐसे नहीं कि मैं एक ही वे दूंगा आपको, आई विल एक्सप्लेन टू यू मल्टीपल वेज। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी। Yes, sir. अब देखो इसमें फॉर एग्जाम्पल, अब आप अगर एक लेटर राइट कर रहे हो किसी को, ओके, तो सबसे पहले आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है, अपने आर्टिकल को। आप जो चीज लिख रहे हो उस चीज को यू हैव टू गिव देम अ रिस्पेक्ट। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं कुछ दो चीजें आपको सिखाऊंगा जो अभी आपको सीखनी है ग्रेजुअली। जैसे मैं बोलूं कि मैंने बस एक आर्टिकल पढ़ा आपका न्यूज़पेपर में, विच मूव्ड मी अ लॉट, जिसने मुझे बहुत 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 मूव कर दिया, मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ उस आर्टिकल को, मैंने इंटरेस्ट लिया उस आर्टिकल का। ओके, सो मेरे साथ बोलोगे। देखो सबसे पहले क्या कि अगर हम बोलते हैं ना रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज, टीम पहले रीसेंट पास्ट समझ लो, पवन आपका रिवाइज कर हो जाएगा। रीसेंट पास्ट है क्या बेसिकली? वनीर प्लस डे प्लस फुल फॉर्म। यस, एक तो कहा कि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा, मे बी आपने 10 दिन पहले पढ़ा हो। एक आप मैंने अभी अभी पढ़ा, हिंदी में, देखो हिंदी यूज करोगे। एक कह रहे हो कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, क्लियर, तो मे बी आर्टिकल पढ़ा मैंने कल परसों पढ़ा हो, बट आई जस्ट, मैंने अभी पढ़ा, तो व्हाट टू से अभी अभी कि मैंने अभी का आर्टिकल पढ़ा। सो टीम, एक तो हमने पास किया है ऑलरेडी हमने किया था ना टीम, हमने पास किया था ना, टेल मी। हाँ जी Yes, सर। sir. राइट, कल वाले सेशन में मैंने रिकॉर्डिंग शेयर किया, उसमें सारा पास हमने जो किया है। एक हमारा होता है रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट का फॉर्मूला हमारा बनता है विच इज वनीर कॉन्जुगेशन। हमने किया ना वनीर वर्ब, अभी भी आज भी किया है, जब हिया त्यो हिया, Yeah, Vanik. Yeah. द प्लस फुल वर्ब। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मैंने अभी अभी एक आर्टिकल पढ़ा, तो मेरा वर्ब क्या है? लीर। लीर फुल वर्ब क्या सर, है? ये जब ही अंदर लीर बनेगा ला आर्टिकल। यस एग्जैक्टली, लीर इज माय वर्ब टू रीड। टू रीड। आकृति मैम, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir.
Rhythm, Harpreet ma'am. Yes. Everybody, Yes, clear. Abhinav, clear? So lead is a verb to read, right? यहाँ मैं क्या करूंगी, मैंने कह रहा हूँ कि मैंने अवार इज माई वर्ब टू सी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी अभी आपका एक आर्टिकल देखा, अभी अभी आपका एक आर्टिकल पढ़ा, अभी अभी। वहां पे बाय डिफॉल्ट एक रूल लगता है हमारा रिसेंट पास्ट का, फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, आप उसको वनीर वर्ब से कॉन्जुगेट करोगे कि अगर आप सब्जेक्ट यूज कर रहे हो ज, तो ज विय हो जाएगा। वनीर वर्ब पढ़ी है हमने, टेल मी टीम। हाँ जी। की सर की थी, हाँ जी। ज विय, तो क्लियर। भी जो विया प्लस द द लगाना ही लगाना है आपने, लगाने ही द लगाना है। और फुल वर्ब लगा दोगे जो आप चीज, एक्शन जो द आप कर रहे लीड, हो। ज विय द लीड। जो विया मैं द कह रहा हूँ लीड, कि मैंने अभी अभी देखा, तो ज विय वनीर द कॉन्जुगेट वर्ड द फुल वर्ब। आप कह रहे हो कि मैंने अभी अभी सुना, मैंने बस अभी अभी सुना। जो विया ज जो विया विय। अब ऑन द कंपाउंड एक मेरी हाँ जी। वर्ब है हियर की, ऑनतोंत्र। तो यहाँ पे दो अतोंद्र, वॉवल्स हैं, तो ज विय दोंतोंत्र। मैंने बस अभी अभी याद किया। सो रिपीट आप, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। ज विय अंतोंद्र, अप्रोंद्र एक मेरा वर्ब है लर्न करने का, हाँ राइट। जी। ज विय दाप्रोंद्र, मैंने बस अभी अभी लिया। ज विय दाप्रोंद्र, प्रोंद्र इज माय वर्ब टू टेक। Is it clear to you, team? Tell me. यस हाँ सर, जी। All of you, is it clear to you? Akriti ma'am, Harpreet Yes, ma'am, sir. Yes, sir. clear? अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बस अभी अभी एक आर्टिकल पढ़ा आपका। हिंदी में देखो, लिखो पहले, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। आई हैव, क्योंकि ये ना हिंदी से ही बेस्ट लगती है, फ्रेंच जो आएगी आपको, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि फॉर्मेशन डिफरेंट है, राइट। सो आई जस्ट रीड एन आर्टिकल, मैंने अभी अभी पढ़ा, तो क्या हो जाएगा टीम? जब वियर द जब लीड, जो विया द लीड लीड से क्लियर। हाँ जी। जो विया जब वियर द लीड, जो विया द लीड, is a article is article। तो मैं करूँगी I just read an article। Je viens de lire an article in your newspaper। In team we have a in preposition दो जर्नल दो दो votre, आपका दो मतलब votre क्या, your, in योर your यस दो paper, वो dans votre journal, journal we have a newspaper। तो आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी? आप बोलोगे je viens de lire un article dans votre journal। बोलो मेरे साथ आप टीम। जब द लीड जो ऑन विया द आर्टिकल लीड आर्टिकल दो दो वॉटर votre जर्नल, तो राइटिंग कैसे आपको लेके जानी है कि आई जस्ट रीड एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर। तो आप लोग je viens de lire जो विया द लीड un आर्टिकल दो article dans वॉटर votre जर्नल, journal। मैंने अभी अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, which देखो हमारा ना कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, which कि which की इज which की। टीम रिपीट की करो which we इसने मुझे which बहुत ज्यादा मूव किया, मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, which gave me a lot of interest। कि माबोकू ज़ेंटेरसे, which me मुझे, म ये मेरा म है, मुझे है ये। म अब यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, तो आ हो जाएगा कि मा बोकू एन से। टीम क्या है कि विच हैज मतलब विच इंटरेस्टेड मी अ लॉट, मतलब इट वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। तो ना एक फ्रेज है एन कीमा की माँ, बोकू इसने मुझे बहुत इंटरेस्टेड किया, पास्ट की बात कर रहे हो ना। इंटरेस्टेड तो अवर वर्ब आ की माँ एन ओके की माँ बोकू बोकू एन से। which gave, देखो ये क्या है, पास्ट से कंपोज हो, पास्ट टेंस तो है, आवर वर्ब क्लियर, इंटरेस्ट और पास्ट से कंपोज है पेपे, इंटरेस्ट राइट। सो बेसिकली वी हैव वर्ब enterase, इंटरेस्ट वी हैव वर्ब enterase, enterase। लेकिन
मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड हुआ कि which gives Interesse. कि माँ बोकू बोकू इंटरेस्टिंग। तो रेप्टे आपने Beaucoup ये आपका ना ओपनिंग दे रहा हूँ आपको मैं कि लेटर beaucoup राइटिंग का ओपनिंग करना कैसे है। अलग अलग वे से आपको मैं ओपनिंग दूंगा, लेकिन आज आप इसको पढ़ो। जो viens de Javier de Lira, un article dont votre journal que m'a beaucoup intéressé. beaucoup Yes, is it clear to you? beaucoup intéressé. हाँ जी, Say Claire. सर जैसे इंग्लिश में होता है which interested me a lot, तो यहाँ पे फ्रेंच में जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसमें which के बाद me है और उसके बाद a lot, लास्ट में interested है, like the Yes. verb is at the last. Because हम तो हिंदी से करेंगे, इसलिए मैं करूँ बार बार हिंदी, बिकॉज हमारा फैब्रिकेशन हमेशा, बिकॉज इंग्लिश में वी विल गेट कंफ्यूज अभिनव, बिकॉज वी हैव अ फैब्रिकेशन विद हिंदी। जिसने मुझे बहुत इंटरेस्ट मतलब हुआ, इज इट क्लियर टू यू किया? Okay, so is it like real very similar to Hindi? ये the sentence सर formation. इंटरेस्ट इम्प्रेस भी कर सकते हैं ना, जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। Yes, clear? D'accord? Yeah. Is it clear? Because you know what, English का fabrication है, make the sentences and all these things, right? मतलब हमें हिंदी को फॉलो करना है, उसको फिर उसकी इंग्लिश करनी है और हिंदी की फिर मतलब इसको ऐसे फ्रेंच में ट्रांसलेट। देखो ना, अब हाउ, अच्छा हमने हिंदी और इंग्लिश में कैसे, if I ask you, you want something, अच्छा I have something, no I have something for you, did you learn कि मेरा you बाद में आएगा, you पहले आएगा इंग्लिश में? tell me. सर नो ना, सो इसी रीजन से आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप हिंदी को यूज करोगे सेंटेंस फॉर्मेशन में फ्रेंच की। से क्लियर, एंड ग्रेजुअली जब आप इस पे आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। से क्लियर? या हाँ जी सर। क्लियर? d'accord, इसको रीड ऑन करो प्लीज, रीड ऑन करो। Javier de ler article dont votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Beaucoup intéressé. Repete après-moi. Je viens de lire. Javier de ler un article dont votre journal qui m'a beaucoup intéressé. beaucoup intéressé. See, Claire? Is it clear to you? Clear? हाँ जी। So it means हमारा फर्स्ट थिंग क्या जाएगा कि मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसने मुझे बहुत मूव किया। देखो मैं आपको अलग अलग वेज बताऊंगा कि मतलब हाउ लॉट ऑफ वेज, lot of ways wherein you can add on your points. So my first point is, repeat after me. बोलो। Javier de ler an article un article dont votre journal। देखो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो कि सर हेलो, आई एम अ लॉयल रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। मैं आपका लॉयल रीडर हूँ न्यूज़पेपर का सिंस 3 years, 2 years, 4 years. I will say if you're a girl, I can say je suis une fidèle. यून क्यों लगाया बच्चों? यून वी क्योंकि फीमेल के लिए, एंड लगाएंगे हम मेल के लिए। से क्लियर? फीडेल, देखो मेरा आप साउंड समझना है। फीडेल, डेल डेल ए ए ए फीडेल ए फीडेल दैट ए Execu. Je suis une fidèle. Fidèle. Je suis une fidèle lectrice. अगर आप लड़की हो तो आई विल से lectrice, otherwise you will say lecteur. Say clair. Male use lecteur, lectrice. मैं कहूँगी I am a loyal reader of your newspaper. Say clair. Team, is it clear? Yes sir, clear. Claire, मैं कह रहा हूँ कि I am a loyal reader of your newspaper, कि मैं इसको डेली पढ़ता हूँ। तो je fidèle होता है वफादार, loyal. I can say je suis une fidèle lectrice de votre journal.
फिर सर इसमें दो क्यों आएगा, इन इन क्यों आएगा फिर? क्या हाल है? हिंदी में देखो, इंग्लिश में इन योर न्यूज़पेपर दो मतलब जुर्नाल अच्छा, आएगा, नहीं है। राइट? हम दो ही लगाएंगे इसमें। नहीं सर ऐसे नहीं, हाँ सीधे ऐसे क्योंकि मैं आपके अब मेरे लॉयल को, रीडर हूँ। हाँ तो आपके मैं एक लॉयल न्यूज, मैं एक लॉयल रीडर हूँ आपके न्यूज़पेपर का, आपके न्यूज़पेपर में। क्लियर? सर दो मतलब जुर्नाल आएगा, दो दो ही आएगा। क्लियर? क्लियर? दो मोत्र जुर्नाल दो मतलब Je जुर्नाल। suis je Just suis un un fidèle fidèle lectrice, fidèle lecteur de notre journal depuis lecteur la lecteur création. depuis Depuis la création la création une, La creación. depuis 2 années. 10 years. The two years. C'est clair. Depuis the maybe 2 années, depuis अब मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको ध्यान समझना। I am a loyal reader of newspaper since the is since। मैं आपको ओपनिंग दे रहा हूँ कि लेटर राइटिंग ओपनिंग कैसे करनी है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। टीम सबको समझ आ रहा है? टेल मी। सो रेप्टे आप Yeah. Je suis une fidèle lectrice, बोलो मेरे साथ आप। Je suis une Je fidèle suis Je suis une Fidèle fidèle lectrice dans votre journal depuis la la création création. मतलब जब से आपका न्यूज़पेपर क्रिएट हुआ है, depuis la création, इधर I can say Depuis la depuis création. une année, I can say depuis 2 années, since 1 year. Team, is it clear to you? Année, that E we have a sound, ague. Say clear. तो बोलो आप ये दो टर्म्स यूज करो फिर। नाउ फॉर एग्जांपल कोई भी लेटर आए XYZ, सबसे पहले ओपनिंग आपको क्या देनी है? ये que je suis une fidèle lectrice dans votre journal depuis la création et je viens de lire dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. बोलो पहले, आकृति से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आकृति मैम। Je, सर मेरे लिए फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला इज बिट आप मेरे कॉम्प्लिकेटेड। आई विल डू द बोलोगे, फर्स्ट वन। आप मेरे साथ बोलोगे, यविया द लीड, आप मेरे साथ पहले फर्स्ट बोल लेती हूँ सर मैं। हाँ बोलो। यविया द लीड आर्टिकल द वॉत्र journal यूरनाल qui m'a की beaucoup माँ बकूब intéressé। इंटरेस्ट। अब मेरे साथ बोलो नीचे वाला, je suis une fidèle lectrice, बोलो je suis यशवी une fidèle उन फिदेल lectrice लेक्ट्रिस dont, बोलो dont दो वॉट votre वॉत्र journal यूरनाल depuis, बोलो depuis दपी la depuis création, ला depuis क्रियासियों या depuis une année, depuis दपी une यून année। आने इसको दोबारा रिपीट करो आकृति मैम। je suis une यशवी यून fidèle फिदे lectrice, बोलो यशवी fidèle यून फिदेल fidèle लेक्ट्रिस dans votre journal दो वॉत्र dont यूरनाल depuis la दपी ला création, क्रियासियों या फिर आप बोलोगे depuis une année, 2 années, जो भी हो, since 1 year। दपी यून आने is year। से क्लियर माई, ओके दपी यून आने। क्लियर हो रहा है आपको टीम? हाँ जी सर। क्लियर आकृति मैम? हरप्रीत मैम बोलो आप Yes. इसको प्लीज, Yes, sir. बोलो आप। Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Je suis une fidèle lectrice dans votre journal depuis la création, depuis une année. सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे जस्विन फॉर द लेक्चरीज वाली। क्लियर? d'accord? Right. विदम बोलो आप। Je suis une fidèle lectrice de votre journal depuis la création, depuis une année. Je viens de lire un article de votre journal qui m'a beaucoup intéressé. कुलिंदर पाजी बोलो आप, मेरे साथ बोलो कुलिंदर पाजी।
Je suis un fidèle lecteur, je suis un fidèle lecteur, क्योंकि आप बॉय हो तो बोलो आप je suis, अभिनव आप बोलो je suis un fidèle lecteur, बोलो अभिनव. Je suis un fidèle lecteur de votre journal depuis la création, depuis une année. Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. C'est très bien. सारे हो गए, पवन रह गए बस, सारे हो गए ना. ओके पवन बोलो आप. Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Je suis une fidèle lectrice dans votre journal depuis la création, depuis une année. यस depuis la création और इधर Depuis une année. c'est clair, d'accord. Now अब मेरे साथ आप बोलोगे. So I have to leave for now. No problem, no problem. Okay. मैं अभी Good night. schedule recording. And please Yeah, look at thank the you. recordings, Abhinav, yeah. Yeah. Okay. Okay. Now अब आप बोलो. आप में से बोलोगे अभी आकृति मैम एंड हरप्रीत मैम में एंड ऑल ऑफ यू. पवन तो नहीं अभी, पवन को फोन ग्रैब. सो आपको तो में भी डिफिकल्ट, बट आप मेरे साथ बोलोगे अभी. आप बोलो यशवी, बोलो टीम. Yes, we. Yes, we. तू ताफे, बोलो तू ताफे, बोलो Tout à fait. c'est-à-dire quoi? Totally. बोलो totalement, बोलो totalement, बोलोगे tout à fait totalement. हमने पवन किया tout à fait totalement. हाँ सर totalement totally वाला जो ये वाला सी ना सर. Je suis, yes, tout à fait, बोलो tout à fait totalement. बोलो मेरे साथ आप je suis tout à fait या फिर je suis totalement. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. आप करोगे I am totally agreed. D'accord. Répétez après moi. Je suis tout à fait d'accord. De votre. Je suis tout à fait d'accord. मैं क्या कह रहा हूँ कि I am totally agreed with your writing, कि जो आपने लिखा है écriture. टीम बोलो écriture. बोलो आप. Écriture. You have to speak up team. बोलो écriture. बोलो Écriture. मैं कुछ टेम्पलेट्स दे रहा हूँ जो आपको लेटर राइटिंग में लगाने हैं और आपको लगा लगा भेजने हैं मुझे. बोलो je suis tout à fait d'accord. Je suis totalement d'accord de votre écriture. Je suis बोलो tout à fait d'accord. Yes. Je suis tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait totalement d'accord ना. de votre écriture. Je suis tout à fait d'accord de votre écriture. Je suis Totalement. Je suis totalement d'accord de votre écriture. Vous avez, बोलो मेरे साथ आप. Vous avez parfaitement raison. बोलो मेरे साथ आप. Vous avez. ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, 4 टेम्पलेट्स हैं जो आपको भी मैं करवा रहा हूँ. Vous avez parfaitement raison. बोलो मेरे साथ आप. Vous avez parfaitement raison. Vous avez is what? You have आ गया. You have. हाँ, you have. हमेशा ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ कि perfectly, parfaitement. मैं कह रहा हूँ you are perfectly right. आप बिल्कुल सही हो, आप गलत नहीं हो. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं बोल रहा हूँ ना कि you are perfectly right, तो मैं यहाँ पे एथ वर्ब यूज नहीं करूंगा, मैं आवर वर्ब को यूज ऑन करूंगा. क्योंकि जब भी मैं ये सेंस बोलता हूँ ना कि आप परफेक्टली राइट हैं, वहां पे जो मैं राइट है ना, रेजो इज राइट. ओके, सो वहां पे मैं आवर वर्ब यूज करता हूँ. बोलो vous avez parfaitement. सर रेजो तो रीजन भी था ना. हाँ, vous avez parfaitement raison. बोलो मेरे साथ आप लैंग्वेज को बोलो. Vous avez parfaitement raison. रियलिटी, बोलो इन रियलिटी. सिंपल है, देखो ऑन रियलिटी, इन रियलिटी. बोलो ऑन रियलिटी. तो अंकित, मैं थोड़े टाइम ऑफ जा रही हूँ. I'll be back.
Okay. और आप मेरे को सेकंड वाला लिंक भी भेज देना प्लीज, जस्ट इन केस अगर थोड़ा टाइम लग जाता है। सॉरी, घर पे कोई आया है। Okay, okay, okay. Vous avez थैंक यू। parfaitement raison. Répétez après moi. Vous avez Vous avez parfaitement raison. Usave perfectmo rezo you are perfectly right. on reality. ये एक नेक्स्ट लाइन है. On On reality. reality. Real. In reality. In reality. On reality. Sure. In reality, कुछ भी. En réalité, चलो इसको en réalité को अभी मैं स्टॉप करता हूँ. पहले आप बोलो vous avez parfaitement raison. Répétez après moi. टीम बोलो. Vous avez Vous avez parfaitement parfaitement raison. raison. En réalité, répétez après moi. ये next line से शुरू करना है. En reality. It means in On reality, in reality, reality में क्या? In reality, je veux, I want to. In reality, je veux exprimer. In reality, I want to veux. express. En réalité, je veux, je veux Excel. En réalité, je veux exprimer les choses. अब लोग Je veux exprimer. I want to express the things. Je veux exprimer. Répétez après moi. Je veux exprimer. Je veux exprimer la chose. Je veux exprimer mes sentiments. कह रहे आप बोलो कि in reality I want to express my sentiments. En réalité, je veux exprimer les choses. Je veux exprimer mes sentiments. बोलो मेरे साथ आप. टीम बोलो. En En reality, réalité, je veux En exprimer reality. les choses. Je veux exprimer mes sentiments in order to. Afin de. अभी एक ही लाइन से, अभी ये इससे आगे नहीं कराऊंगा, यही की प्रैक्टिस कराऊंगा. Afin de is in order to. Afin de. In order to मतलब in order to add on some arguments. Afin de ajouter. ajouter, exactement, afin d'ajouter les arguments. Les arguments, the arguments. C'est clair? हाँ जी. D'accord? Now répétez après moi. अबे आप मेरे साथ बोलोगे, अभी बोलो. Je suis tout à fait d'accord. बोलो मेरे साथ आप. Je Je suis suis tout tout à à fait fait d'accord. d'accord. The votre écriture. It means देखो ये कुछ टेम्पलेट है जो आपको हेल्प करेंगे एक लेटर राइटिंग लिखने के लिए, राइट? These are some templates which will help you. Say clair. तो आप बोलो एक बार. Je suis tout à fait d'accord. Répétez après moi. Je suis tout à Je suis fait totalement d'accord de votre écriture. Totalement Je suis Totalement totalement Vous avez d'accord. parfaitement raison. Répétez après moi. Vous avez Vous avez parfaitement raison. parfaitement raison. En réalité, répétez après moi. En réalité, En réalité, je En veux réalité, in reality, I want to express the things. Je veux exprimer mes sentiments. I want to express my sentiments. In order to add on some arguments, afin d'ajouter les arguments, in order to add on the arguments. C'est clair? हाँ जी. So team एक बार हाँ जी सर. मैम इसको दोबारा से बोलना जो हमने लाइंस करी हैं. आकृति मैम. yes sir, yes sir. हाँ बोलो. Je suis tout à fait d'accord. Écriture. Yes, the votre écriture. Very good, very good. Vous avez parfaitement raison. En réalité, je veux exprimer les choses.
exprime les mo sentimo Me sontimo my sentiments. बोलो me sontimo me so me sentimo my sentiments. Okay. afin de Add on in order to. afin de क्या होता है? in order to. लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. afin de क्या होता है? afin in de order to. afin in order to de les arguments. afin in de order to add on the arguments. Is it clear to you? हाँ जी yes. अब इसको आकृति मैम, हरप्रीत मैम, पवन एंड कुलिंदर पाजी, मेरे को जितना मैंने लेटर राइटिंग करवाया है, जो मैंने अभी लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट्स मैंने करवाए हैं, कितने टेम्पलेट्स हैं? ये 5 टेम्पलेट्स हुए आपके? हाउ मेनी टेम्पलेट्स? टेल मी. yes sir. 5. इन हाँ 5 जी टेम्पलेट्स को वन बाय वन करके बोलो आप. पहले वी स्टार्ट फ्रॉम पवन. पवन बोलो 5 टेम्पलेट्स को. ओके सर, जवियन द लीर से शुरू करना है. Je suis une. हाँ. जवियन द लीर ना, un ना, ना, article पहले- dans votre journal. पहले आप बोलोगे यशवी इनफिदल लेफ्ट. अच्छा सर, इधर ये वाला तो ताल. ओके नहीं पवन, स्टार्टिंग का पहले एक मिनट सर. इनफिदल लेक्ट्रीज, फिर जवियन द लीर, कैसे भी शुरू कर दो. ओके सर, मेरा ये उल्टा फुल्ट मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है. कोई बात नहीं. हाँ सर, मैंने वो पहले जवियन द लीर पहले हाँ, लिखा हुआ है. कोई बात नहीं, दैट नॉट अ प्रॉब्लम. करो आप. Jovem da ler um article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Je suis une fidèle lectrice dans votre journal depuis la création. Depuis une année, je suis tout à fait d'accord de votre écriture. Je suis totalement d'accord de votre écriture. Vous avez parfaitement raison. En réalité, je vais exprimer les choses, je vais exprimer mes sentiments afin d'ajouter les arguments. Les d'ajouter les, c'est très bien. Now can you speak, Harpreet ma'am? Yes, sir. Je suis une fidèle lectrice dans votre journal depuis la création. Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Je suis tout à fait d'accord de votre écriture. Vous avez parfaitement raison. En réalité, je veux exprimer les choses, mes sentiments afin d'ajouter les arguments. C'est très bien. Akriti ma'am? Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Je suis une fidèle lectrice dans votre journal Very good. depuis la création. Very good. Je suis tout à fait D'accord. d'accord dans votre étude. C'est très bien. Vous avez parfaitement raison. En réalité, je veux exprimer les choses, mais it is sentiment, right? Sentiment. Afin d'ajouter les arguments. afin d'ajouter les arguments. Yes. Claire? D'accord team? Is it clear to you? Clear? So team, एक काम करोगे अभी आप, मेरे को ये 5 के 5 टेम्पलेट्स आप अभी लिख के भेजोगे. क्लियर? d'accord? Is it clear to you team? सर जो कल मैंने वो भेजा था, आप सेक्शन ए का भी भेजा था, तो वो सारे रूल्स ठीक थे? हाँ वो ठीक थे पवन, that was all right. क्लियर? मैं ना आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक लिंक शेयर कर रहा हूँ टीम आपको, उस लिंक को आपको देखना है अभी. क्लियर टीम? ओके. पवन, इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी. ग्रेजुअली मैं आपको चीजें कराऊंगा कि हाँ आप जी सर. स्किप ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी हैवी पोर्शन पे रहती हैं. ठीक है? ओके. हाँ जी सर. इज इट क्लियर टू यू? सो
अभी आपसे मैं 2 रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, पवन एंड टीम, अलग अलग आपके लेवल पे मैं कुछ रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, उन रिकॉर्डिंग का टास्क आपको मुझे करके भेजना है। कैन यू डू दैट टीम? Yes, sir. हाँ जी सर। सो दैट कि यू नो, तो अभी मैं आपसे 2 सेशन शेयर करूंगा डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑल्सो, ठीक है? सो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कुलविंदर पाजी कैन यू स्पीक अप? सॉरी आई फॉरगॉट यू। कुलविंदर पाजी कैन यू स्पीक अप? Yes, sir. Yes, sir. बोलो प्लीज। Do I need to read यस यस whole sentences? Okay, sir. यस। Je suis un fidèle फिदेल लेक्टर lecteur. Yeah, je suis un fidèle lecteur dans votre journal depuis la création. Je viens de lire un article dans votre journal qui m'a beaucoup intéressé. Depuis un année, je suis en fait totalement d'accord votre en- écrité. Vous avez écriture, écrit, vous avez parfaitement raison. parfaitement En réalité, je veux exprimer les choses, mon sentiment afin afin d'ajouter d'ajouter les arguments. les arguments. C'est clair? Yes, sir. d'accord, क्लियर? मैं ना टीम आपको जो कुछ अपना शेयर करूंगा राइटिंग टास्क का, क्लियर? आप सभी को वो सेशन देखना है। अभी आप थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है? गिव मी 1-2 hours टाइम। नेक्स्ट 2-3 hours में आकृति मैम, हरप्रीत मैम, पवन एंड कुलविंदर बाजी, आई विल शेयर अ राइटिंग टास्क पैटर्न जहाँ मैं राइटिंग लिख रहा हूँ, लेटर राइटिंग करनी कैसे है, क्लियर? उसको देखते हो आपको एवरी चीज यू हैव टू पेन डाउन। मेरी बात को समझो। एक राइटिंग फॉर्मेट भेजूंगा आपको मैं, आपको उसका पूरा सेशन भेजूंगा। उसमें मैं है मेरे पास एक सेशन, अभी आप शेयर करता हूँ आपके साथ। मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको राइटिंग टास्क करना कैसे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कितना समझ आ रहा है एंड शेयर द फीडबैक टुमारो। से क्लियर? हम इसको आगे और करेंगे। Yes, sir. No, sir, बहुत पढ़ा है पहले ही. ओके, ऑलराइट। सर नेक्स्ट है हमारी क्लास। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर रिदम, पवन। ओके, सो आई विल So I will be there. रिदम, सॉरी क्या कह रहे हैं? Sir, can also attend the class next 8:30. हाँ, मैं एक बार देखता हूँ कि हैरी का क्या सीन है, ठीक है? सो गिव मी 5-10 मिनट्स टाइम देन, ठीक है? नहीं तो आपसे मैं एक ऑडियो शेयर करूंगा, सॉरी सेशन शेयर करूंगा, उसको आपको देखना है, ठीक है? Right. ओके सर, हाँ जी हाँ जी। ऑलराइट। ओके।